ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਈਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਰਾਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਚਾਚੂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ? 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਏਗਾ, એનર્ਜੀ ਬਚੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ। ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਲਾਵੇ ਮਿਲਾਤੇ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਹਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਗੈਸ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੈਸ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ LPG ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 200 380 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਤ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਓ? ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਾ 2000 ਦਾ 15 ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਟ ਸਾਡੀ CM ਪੈਂਦੀ ਸਸਤਾ ਸੂਟ। ਕਿਹੜੀ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ 4 ਸੂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੀਗਾ ਦੇ ਸੂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੇ 4 ਸੂਟ, ਪੂਰੀ ਰੀਗਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਭਾਰੇ। ਜੀਓ ਚਾਚਾ ਜੀਓ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 1000 1200 1400 ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ 2000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਪਏ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਰਬ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 100 ਅਰਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਲਰ। ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਖਵਾਸਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਾਚੂ? ਓਏ ਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਡੈਡੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਹੋ ਸਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦਿਨੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ? ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ PIA ਵੇਚੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਕਿ PIA 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਤ ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। 17 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ 17 ਸੀਟਾਂ। ਚਾਚੂ PTI ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ 117 ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਸੀਟ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਕ ਦੁਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਨੂਨ ਕਿੱਥੇ।
रेडी वाला रेडी जाती है तो उसकी रोटी किधर से आएगी? जिस गरीब के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, रोटी बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, वो रोडों पे ऐसे पटे कपड़े पहनेगा, कपड़े अच्छे नहीं पहने होंगे तो वो खूबसूरती नजर आएगी? गरीब खुशहाल होगा तो फिर पाकिस्तान खूबसूरत नजर आएगा। रोटी कितने रुपए हो गई है? नॉन कितने का हो गया? 30 रुपए का। आटे की बोरी 1800 रुपए आई थी, बड़े नरे मार रहे थे सारे कि हमने बहुत आटा सस्ता कर दिया। अभी 3000 में वापस चली गई है, क्यों नहीं बोल रहे? अभी हमारे ताजरों का तो जीना आराम किया हुआ इन्होंने। आप बताएं, जो ताजर थे पहले नून लीग के थे, ज्यादा ताजर किस पार्टी के से थे? नून लीग से। अब कौन ताजर किधर है? मैं खुद नून लीग का था, मगर अब नहीं हूँ, कभी भी वोट नहीं दूंगा। पहले एलडीए थी ना, एलडीए का क्या काम था? इंक्रोचमेंट खत्म करना। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीरा फोर्स बनाने की क्या जरूरत थी? पीरा फोर्स किसके टैक्स के पैसों से ताकि तनख्वाह लाहौर देती को है? खूबसूरत किया जाए। खूबसूरत कैसे खूबसूरत होता है? कारोबार होगा तो मैशियत होगी, गरीब खुशहाल होगा तो फिर जाके पाकिस्तान खुशहाल होगा, खूबसूरत नजर आएगा। जब जिस गरीब के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, रोटी बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, वो रोडों पे ऐसे पटे कपड़े पहनेगा, घूमेगा, कपड़े अच्छे नहीं पहने होंगे तो वो खूबसूरती नजर आएगी? खूबसूरती तो इंसान से होती है। खूबसूरती तब नजर आती है जब आपके मुल्क में कोई गरीब नहीं है। आप गरीब के सहूलत दें तो खूबसूरती नजर आती है। 10,000 आता है गरीब को महीने का, 13,000 आता है। 10,000 में आपकी बात करना, 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में गुजारा होता है? पुल बन गए, सड़कें बन गई, मुल्क मॉडल विलेज बन गया, उससे फर्क नहीं पड़ता गरीब को। गरीब को फर्क पड़ता है उसको रोटी, उसकी रोजी से। रेडी जाती है तो उसकी रोटी किधर से आएगी? उसको रोटी कौन खिलाएगा? वो अपने खूबसूरत सड़क को देख के, खूबसूरत पुल को देख के वो खुश हो जाएगा, उसके बच्चों का पेट भर जाएगा। आप बताएं, ऐसे होता है? नहीं होता है मेरे भाई। जब तक आवाम खुशहाल नहीं होती ना, ये खूबसूरती, लाहौर खूबसूरत बनाना या इस तरह बनाना, इससे ये तब फ़ायदा होगा जब आप गरीब बंदे को कोई थोड़ा बहुत उसको रिलीफ देंगे। हमारे ऊपर तो ये पीरा फोर्स इन्होंने मसलत की है, एक अजाब मसलत किया हुआ है। पीरा फोर्स का काम है इंक्रोचमेंट रोड से ख़त्म करना, गवर्नमेंट एरिया से। पब्लिक प्राइवेटी ये इंक्रोचमेंट में आता है इधर एरिया हमारा। इंक्रोचमेंट का नाम से मरी का जो हाल हुआ है, देखा है आपने कितने लोग गरीबों के रोज़गार की। जिका गली बाज़ार था हमारा उधर एक न्यू मरी में, जिका गली बाज़ार, उन्होंने कहा रीमॉडलिंग की वजह से कि उसको रीमॉडलिंग करेंगे, हम अच्छा सा बाज़ार बनाएंगे। उधर लैंड स्लाइडिंग हुई है, कम अज़ कम 200, 150, 200 घर नीचे आ गए उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से। ऐसे नहीं होता है, ये होता है, मगर हर चीज़ का एक मुतबादिल है। अब मुतबादिल उसका निकालो, पहले ख़त्म करो हर चीज़ का, फिर जाके इस तरह के कानून बनाओ। यहाँ पे वो कानून लागू नहीं हो सकते। ये इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका नहीं है, ना ये सऊदीया है, ना दुबई है, क्योंकि वहाँ पे अमीर मुल्क है, गरीब लोग नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो गरीब बंदा होता है उसको गवर्नमेंट कम अज़ कम महीने का, जो जब तक नौकरी नहीं लगती उसको तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं घर में। मैं सऊदीया भी रह के आया हूँ, दुबई भी रह के आया हूँ, वहाँ पे तनख्वाह पैसे लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे गरीब बंदा है, अब उसकी रेडी मुझे और किसी चीज़ का दुख नहीं है। ये रेडी वाले जो बेचारे 200-300 रुपये कमा के ले जाते, शाम को 1000 रुपये, 500-1000 रुपये कमाते हैं, उनका क्या कसूर है बेचारे को? उनके घर में फायके पड़ गए। उस जो बेचारा और कोई काम जानता ही नहीं, जो सदियों से कितने आज जब से पाकिस्तान बना है, ये रेडियाँ लग रही हैं ना हमारे इलाके में, हर जगह लगती हैं। आप भी लाहौर में रहते हो, लगती थी ना। आप एकदम हटा देंगे आप तो कैसे निज़ाम चलाएगा वो? उसका मुतबादल भी तो होना चाहिए ना। मुतबादल कोई भी नहीं है। आप बताओ, एक मुतबादल दिया है, 10 रेडियों की जगह है, गवर्नमेंट की तरफ से 10 रेडियों उनको मिली हुई हैं, बाकी बेचारे किधर जाएंगे? टैक्स तो हर बंदा देता है, गरीब भी टैक्स देता है। जब वो चाय की पत्ती भी खरीदता है ना, उस पर भी टैक्स अलग से लगा होता है। जब वो एक टॉफ़ी भी खरीदता है ना, उसके ऊपर भी टैक्स है कि नहीं है? टैक्स तो हमारा हर चीज़ पे है, मगर उन सहूलत भी तो आवाम को होनी चाहिए। लीडरों के तो सब सिस्टम वही चल रहा है, हर चीज़ किसी चीज़ में कमी। उन्होंने अपना प्रोटोकॉल काम कर लिया, अपने अखराजात काम कर लिए, सब कुछ। आप मेरे भाई जाके देखो, पूरे जब प्रोटोकॉल को गुजरता है, आप कैमरा लेके गिनती करना कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, कितनी गाड़ियाँ होती हैं प्रोटोकॉल में। ऐसे नहीं होता है। हम भी नून लीग के थे, हम सपोर्टर हैं पक्के। हमारे हल्का है मरी, हम उसके शायद हक्का नबासी के सपोर्टर थे। हम हमेशा से उसको वोट देते थे। हमारे हल्के से कभी कोई नून लीग के अलावा कोई जीतता भी नहीं था। हमारी मार्केट खुलती है 1 बजे, क्योंकि यहाँ कस्टमर आता है, गर्मियाँ हैं, कस्टमर 4-5 बजे के बाद स्टार्ट होता है। मगरब हो जाती है 7 बजे। अब मगरब की नमाज़ पढ़ के आते हैं, दुकानें बंद, कैसे कारोबार चलेंगे? जो गरीब बंदा है, मैं आपको सही बात बताऊँ, अभी बिजली की यूनिट पिछले महीने मेरी 135 चली है टोटल, 135 यूनिट की। कोई बच्चे मेरे इधर नहीं थे, ठीक है। 135 यूनिट का बिल कितना आया है? 7,500 रुपया। कोई तुक बनता है? आप गरीब बंदा जो 10,000 रुपये जिसका घर बिल, एक पखा चलाएगा बिजली का बिल, कम से कम 150-200 यूनिट वो चलाता है, पर एक पखा चलाए उसका बिल 12 से 13,000 रुपये का। 10,000 रुपये में उसका घर का निज़ाम चलेगा?
रोटी रोटी कितने रुपए हो गई है, नॉन कितने का हो गया, 30 रुपए का। आटे की बोरी 1800 रुपए आई थी, बड़े नरे मार रहे थे सारे कि हमने बहुत आटा सस्ता कर दिया, अभी 3000 में वापस चली गई है, क्यों नहीं बोल रहे अभी? जब दुकानदारी का टाइम आता है हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दुकानदार ले आए, अगर कोई कहेगा ना कि मैं खुश हूँ, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, सारे में है। जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में। जब खुशहाली का टाइम आता है, दुकानदारी का टाइम आता है, हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, तो घर में कहाँ खुशहाली है? घर जाना है, बीवी बच्चों ने पैसे मांगने हैं, सेल होगी तो जेब भरी होगी तो पैसे भी देंगे। यहाँ पे जब सेल का टाइम आता है, ग्राहकों को कहते हैं कि बाजी निकलें, तो वो कहती है दिन के टाइम धूप होती है, हम लोगों से नहीं निकला जाता, हम लोगों को धूप तंग करती है। जब दुकानदारी का टाइम निकलता है, 6 बजे के बाद होता था गाहक 11-12 बजे तक, अब वो गाहक 8 बजे निकलता है, 8 बजे कहते हैं पैरा फोर्स आके दुकानें बंद करो। और परसों की बात है, यहाँ पे एक SHO साहब है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब हम लोग पहले ये बताएं, इंसान है कि भेड़ बकरियां है? आप लोग इंसान हैं। इंसान है। 8:10 पे वो आया है, ओए चल दुकान बंद कर। ये कोई है कोई इंसानियत का तकाजा कि एक इंसान को आप कह रहे हो कि ओए दुकान बंद कर, निकल? आपको गालियां दे रहा था? हाँ जी, गालियां दे रहा था, यहाँ से यूं पकड़ रहा था यूं, तो ये इंसान है? अब कहने का तो हम भी आपने उसको कहना था भाई मुझे गाली ना दो, मुझे तो हुक्म है पंजाब हुकूमत का सर कह के मुखातिब करने का। वो कहते हैं 8 बजे से 10 मिनट ऊपर हो गए थे। जिस तरह पता नहीं आसमान गिर गया है, इस तरह तो कोई कुफार भी मुसलमानों के साथ नहीं करता जिस तरह वो हमसे। हमने फिर ये आप अल्फिया कहते हैं, आपको गाली पड़ी? अल्फिया कह रहा हूँ कि उसने मुझे, ये मेरे लड़के हैं साथ, इनसे पूछ के देख सकते हैं, फोन पे बात कर रहा है जिस तरह पता नहीं वजीर आजम है, हमें यहाँ से पकड़ के कहता है ये कोई इंसानियत है? ये कोई हम इंसान है? इंसानों का मुल्क ऐसा होता है, मुसलमानों का मुल्क ऐसा होता है कि एक इंसान को आप उसको कह रहे हो कि चलो हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़े के औकात नहीं रखते। अब खुद पता नहीं क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, अपने आप का पता नहीं है। हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, पोल रहे हैं, फिर ही में हमें गालियाँ, ये कहाँ की भलाई है? नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपके यहाँ ओरिगा में कोई सदर होगा, कोई चेयरमैन होगा, मार्केट कमेटी होगी, किसी ने उसको कहा नहीं कि आपको बात करने का सलीका नहीं है? तो हमने फिर इतनी लंबी चौड़ी बहस की नहीं उसके साथ, इतनी छोटी बात अगर हम लेके आए, लेकिन हमें ये छोटी बात तो नहीं है कि आपकी उसने शख्सियत को हिट किया। इतनी हम बात बढ़ाना नहीं चाहते थे, अब फिर बढ़ाएंगे, फिर वो आएंगे। जिस तरह वो नसीम शाह एक ट्वीट की थी तो उसके ऊपर क्या असर हो गया, क्या हाल हो गया। वो इतना बड़ा मतलब क्रिकेटर है, तो हम लोग क्या है, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़े के औकात नहीं रखते। पता नहीं, हमें पता नहीं लगना। भाई आप इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, आप कारोबार करते हैं, टैक्स देते हैं, बिजली चोरी करते हैं? नहीं, बिजली टैक्स देते हैं, सारा टैक्स, बच्चों को रिस्के हलाल कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र, रिस्के हलाल खिलाते हैं, शुक्र अल्लाह का। तो फिर आप क्यों कीड़े मकोड़े हैं? आप अशरफुल मखलूकात हैं। बस वो इस चीजों को नहीं देखते हैं कि हुकूमत है, 8 बजे से 2 मिनट ऊपर होते हैं तो गालियां देना शुरू हो जाती है, चलो बंद करो, ये हम आपका टैक्स कर देंगे, हम आपका मतलब बंद कर देंगे, सील कर देंगे। उस डर के मारे, जुर्माने के बारे कि इतनी दुकानदारी नहीं है, कुछ कमा नहीं रहे, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऊपर से जो टैक्स हो गया वो हमें धमकी देते हैं 3 दिन आपकी दुकान सील हो जाएगी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में, जीना मुश्किल हो गया, ये मतलब हो गया। नहीं, नसीम शाह ने तो गलत बात की थी ना, नसीम शाह तो और है, आप और हैं। नसीम शाह तो गलत बातें करता है। नसीम शाह ने भी गलत बात की थी तो उसने ट्वीट अपनी वापस ले ली थी। इस तरह तो वो ख्वाजा साद है कि कौन से है, उन्होंने भी कुछ की थी कि वो एहसन इकबाल है, उन्होंने भी तो की थी। जब ट्वीट वापस ले ली थी के बारे में कुछ कहा था तो दस्ती उन्होंने ट्वीट, तो उसको क्या था। लेकिन हमें क्या करना, नसीम शाह जो भी, हमें तो अपने कारोबार से फ़र्क, हमें 8 बजे से बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। 8 बजे यहाँ पे गाहक निकलता है, तो 8 बजे जब हमारी दुकानदारी शुरू होती है उस टाइम हमें कहते हैं बंद करो, तो बंद करनी पड़ती है। हुकूमत के सामने किसका जोर है? आपकी सेल में कितना फ़र्क है? सेल में आधे से ज़्यादा यही है, बस सूट बेच लिए हैं, खाना पूरा हो रहा है, ये बच्चों की जो रोज़ी रोटी है वही लगी हुई है, सेलमैनों का खर्चा पूरा हो रहा है, बस यही कर रहे हैं और क्या है। बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अल्लाह के सुपुर्द के। अल्लाह कोई ना कोई दिन आएगा, सही कर देगा, फिर सही हालात हो जाएंगे। अब वो पता नहीं कब होने हैं हालात सही। बिल कितना आ रहा है बिजली का आपका? बिल आ रहा है तकरीबन 23-24 हज़ार बिल आ जाता है महीने का। किराया कितना? किराया तो शुक्र है, किराए से तो बचे हुए हैं कि अपनी दुकान है। किराया होता ना तो कब का हमने बोरी बिस्तरा गोल करके घर बैठे होना था, क्योंकि किराए वाले तो बेचारे रो रहे हैं, किराया निकल नहीं रहे। साथ नहीं हो रही गया, ज़रा सा मसला होता है, कल से हो रही बंद हुआ नहीं हो रही, यही किराए की वजह से कि मालिक पूछ। यहाँ किराया कितने ओरिगा में? ये पता नहीं, इतनी दुकान हो तो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए किराया होता है इतनी दुकान का। वो भी बेचारे रो रहे हैं
कि जब किराए का दुकानदारी का टाइम आता है तो उस वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं। कम से कम हुकूमत को इतना तो सोचना चाहिए कि 10 बजे तक तो टाइम देना बनता था। ये 804 को निकालो ना, आपका कर्जा भी खत्म, ठीक है, आपके मुल्क के हालात भी ठीक। लगाओ मेरे साथ शर्त, ये ओपन चैलेंज है मेरा सबको। 804 से निकलो, इस तरफ देखो, इंशाल्लाह बरकत और बहारें ही बहारें हैं। ओ भाई कहाँ पे है? सारे लोग उसकी वेट कर रहे कि वो आएगा तो कुछ बनेगा। 4 सूट मैंने नुकसान पे बेचे हैं। क्यों? भाई काम ही नहीं है, आप यकीन करेंगे मैंने नुकसान पे बेचे हैं। तो ना बेच दे, अगले दिन बेच दे। लेडीज इधर आ को जाओ। मैंने तरले मारे, तरले। अच्छा, लेडीज को मैंने तरले मारे कि बाजी मुझसे सूट खरीद लो, सिर्फ मैंने पैसे कैश करने हैं। उन्होंने क्या क्या वजह, उनको मैंने दोबारा बुलाया, एक दफा चले गए। मैंने अपनी कोशिश पूरी की है, लेकिन मैंने कसम वाली बात है मैंने नुकसान पे बेचे 400। क्यों? कहीं नहीं, कुछ काम ही नहीं है। तो अगले दिन बेच देते यार। है ही नहीं, अगले दिन को कौन देखता है? जब आज के दिन बच्चों ने दिखाना है ना, घर में पैसे तो देने हैं ना, कहाँ से पूरा करें? इधर से ही करना है ना। सामने कुत्ते वाला है, बिस्मिल्लाह भी नहीं किया हुआ। इधर ऐसा दुकानदार मुझे बताओ जो रात को खुश हो के जाए। हर दुकानदार पीट रहे, हर दुकानदार पीट रहे। कई दुकानदारों ने ना अपने लड़के छुट्टी करवा दी इधर से ओरिगा से कि भाई हम अपना खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते तो और लोगों का क्या करेंगे? नहीं, हुकूमतों को ये दावा करती है गुर्बत खत्म, महंगाई खत्म, बेरोजगारी गुर्बत खत्म। खत्म। अगर गुर्बत खत्म होती, जो परसों इचरे में वाकया हुआ, 3 बच्चे जो किए गए, वो गुर्बत की वजह से नहीं किए गए। उसकी वालदा ने बयान दिया कि गुर्बत थी, गुर्बत की वजह से किए गए। नहीं नहीं, वो तो अभी पूरी बात नहीं आई। अभी गुर्बत तो खत्म है, ये तो आप मान लें। कहाँ से गुर्बत खत्म है? इतने को तैयार है हर बंदा कि भाई क्या करे ना करे तो क्या करे, काम ही नहीं है कहीं पे। दिहाड़ीबाजी बाहर खड़े हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। कुर्ते वाला है, उसने बिस्मिल्लाह भी नहीं किया, घर गया, वो इतना परेशान था। बाजावट से आया हुआ है, पिशावर से आया हुआ है, पिशावर से आया हुआ है, घर छोड़ के आया है, माँ बाप को छोड़ के आया है। उसने कल बिस्मिल्लाह भी नहीं किया, इतना परेशान करके बैठा हुआ। अभी भी उधर बैठा हुआ किया बिस्मिल्लाह आज उसने। अब मुझे आज का नहीं पता, कल का उसने मुझे बता के गया है घर। उसने कहा अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सामने उसका कमरा उसने किराए पे पकड़ा हुआ है, बाजावट से आया हुआ है। बिलाल भाई जो पटवारी है ना, वो एंड कर गए। वो इस हद तक आ गए ना कि वो लोगों की लेना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या मतलब? यानी वो कहते हैं कि नहीं ये सही है ये लोग। वो भाई जो सही है उसको सामने लेके आओ। आप लोग सच छुपाते हो, झूठ को फैला देते हो। ये कौन सा मुल्क है? तो सही सामने आ तो गए हैं। मियाँ शहबाज साहब आ गए हैं, जरदारी साहब आ गए हैं। चलो मुझे पता आप कहाँ से बात कर रहे हो। सारा बेड़ा गर्क उसी 804 ने किया, जिसकी वजह से आज इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप उसी 804 को निकालो ना, आपका कर्जा भी खत्म, ठीक है, आपके मुल्क के हालात भी ठीक। लगाओ मेरे साथ शर्त, ये ओपन चैलेंज है मेरा सबको। क्या कह रहे हो? आपका कर्जा भी खत्म, आपके मुल्क के हालात भी ठीक। 804 निकला, 804 निकला। मैं भी तुमसे शर्त लगाता हूँ, अभी जो पाकिस्तान ऐसे जा रहा है ना, अगर 804 निकला या ये मैं नहीं कहता, ये भाई तारर कहता है, आप ही मरियम औरंगजेब कहती है, आप ही अजमा बुखारी कहती है, आप ही हिना परवेज भट्ट कहती हैं, उनके लेक्चर सुने। वो कहते हैं फिर ऐसे जाएगा और फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज होगा। ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने जो बोलना था वो मैंने आपको बोल दिया है। 804 से निकलो, इस तरफ देखो, इंशाल्लाह बरकत और बहारें ही बहारें हैं। ओ भाई कहाँ पे है? सारे लोग उसकी वेट कर रहे कि वो आएगा तो कुछ बनेगा। अगर मरियम नवाज साहिबा देख रही है, क्योंकि 8 बजे मार्केटें बंद होती है, 6 बजे लाइट चली जाती है, फिर 7:30 बजे आती है, 7:45 बजे फिर मार्केटें पुलिस वाले बंद करवाते हैं। और अभी दिन को गर्मी होती है, कस्टमर नहीं निकलता, 4-5 के बाद कस्टमर का निकलना होता है। गर्मी होती है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, एसियाँ वगैरह लगी नहीं है, पंखे से ही गुजारा हो रहा है हमारा।
तो अगर मरीम नवाज साहिबा सुन रही है तो बराए मेहरबानी मार्केटों पे ये देखे अभी लाइट चली गई, तो ये लाइटें 6 बजे बंद ना करवाए, 8 यही 2 घंटे हमारे काम के होती हैं, तो वो 2 घंटों में जो है ना लाइट चली जाती है। दिन को सारा गर्मी होता है, कस्टमर का आप गली में दिखाए कोई कस्टमर नहीं, यहाँ पीछे दिखाए कुछ भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा है। इधर दिखाए ये मार्केट का हाल है। तो अभी देखो लाइट गई है, अभी कस्टमर ने निकलना होता है क्योंकि थोड़ी सी ये सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है, उसके बाद लाइटें हमारी जाती है। कम से कम 5 से 8 बजे तक जो है ना ये लोड शेडिंग बंद करवा दे, 8 बजे पर भी हम शुक्र करेंगे, लेकिन वो तो 6 बजे भी नहीं पूरा होता, 6 बजे के बाद लोड शेडिंग शुरू। तो बराए मेहरबानी जो भी सुन रहे बड़े जो अब ये जनरेटर चलाया, ये जनरेटर किसी ने यूपीएस लगाया होता है नहीं, जो 6 बजे वाला सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट बंद करवा देती, फिर 7:30 बजे गवर्नमेंट 8 बजे की मार्केटें बंद होती वो बंद करवा देती। तो बराए मेहरबानी इसका ज़रा कोशिश करें कि ये मार्केटों का जो लाइट है वो 6 से 8 तक बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, 8 बजे वैसे ही मार्केटें बंद हो जाती है, तो लोग वाला पहले से बड़े परेशानी में मुश्किलात है, सारा सिस्टम है, तो बड़े हालात ख़राब हुए हैं। बराए मेहरबानी इस चीज़ पे ज़रा सोचें कि ये लाइट जो है ये 6 बजे तक ना जाए मार्केटों की, बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है पूरे मार्केट। 6 से 8 बजे तक। तो 8 बजे जो लॉकडाउन हो जाता है आप इस पे मुतमईन हैं? सर मुतमईन तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि इन लोगों के मसाइल जो है ये हल नहीं कर पा रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे 8 बजे ये बंद कर देते हैं, ठीक है, लोग जो है घरों से अब कितनी धूप हो रही है, कौन इन बाज़ारों में आएगा, सारा बाज़ार सुनसान है। हालांकि मैं पहले भी आता था यहाँ पर और लोगों का जमे गफ़ीर होता था यहाँ पर, अब जो है सारी दुकानें खाली हैं, लोग परेशान बैठे हुए हैं, टाइम देख रहे हैं बार बार कि कब 8 बजेगा, कब 8 बजेगा, लोग आ जाएंगे, बंद करवाने वाले आ जाएंगे, लोग परेशान हैं, लोगों के किराए नहीं पूरे हो रहे, ठीक है। हम अगर इतनी दूर से आते हैं, 6 बजे घर से निकले, 7 बजे यहाँ पहुँचेंगे, 1 घंटे में तो शॉपिंग भी नहीं होती। अगर किसी ने कोई चीज़ लेना है तो हम किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं, परेशान है, टाइम नहीं है, किराया नहीं पूरा हो रहा, घर का राशन नहीं पूरा हो रहा। जाहिर सी बात है कस्टमर आएंगे तो इनका घर चलेगा, इनका चूल्हा जलेगा, ठीक है। तो ये लोग आप किसी के भी चेहरे में देख लें, खुशी नहीं नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि उनको पता है कि 2 घंटे रह गए, 8 बजे तो सारी दुकानें और मार्केटें बंद तो ख़त्म हो गई है ना दोस्त, खुशियाँ तो वैसे ही आ गई हैं। ये देखिए ना, इनके चेहरे पे नजर आ रही खुशियाँ आपको, किसी के चेहरे में बताएं आप? वो देखें, ये तो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपका माशाल्लाह रौनकदार चेहरा है, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, वरना इनके हाल आप पूछे ना, इनका क्या बीत रही है, 1.5-5 लाख रुपए किराया इनका, कैसे ये अफोर्ड कर रहे होंगे जब कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। जब कस्टमर अपना टाइम देख के आते हैं कि 5 बजे तो ऑफिसों पर छुट्टी होती है, जो कारोबारी हजरात है अपनी दुकानें बंद करके, जो भी परचून की वो बंद करके यहाँ आते हैं, जब यहाँ आते हैं आगे मार्केटें बंद होती हैं। ऐसे ही है ना, ये सारे ये खड़े हुए, ये सारे परेशान हैं। मैं भी 5-6 दुकानें विज़िट करके आया हूँ, मैंने 2 चीज़ें ली हैं, बात यही हो रही है, 8 बज जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, किराया नहीं पूरा हो रहा, ये सीन है हर जगह पे। मेरे साथ विज़िट करें, आपको कस्टमर बहुत कम नजर आएंगे दुकानों में। देखिए ना, 5 बजे के बाद ये छुट्टी होनी है। आओ मैं आपको दिखाऊं, कस्टमर है, मेरे साथ आए सर। ये ऐसे ही मार्केट है, नहीं है ये सर, ये ऐसी मार्केट है कि यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं होता था, ऐसी मार्केट है ये कि यहाँ से ये गुजरने का रास्ता नहीं होता था। अब आप आए मेरे साथ, खुलडुल के 5 बंदे भी गुजर जाएंगे, आप खाली पड़ी हुई हैं दुकानें। ये बहनें जो खड़ी हैं, बाजियाँ खड़ी हैं, आगे सारे कस्टमर सर ऐसे तो 4 बंदे आप यहाँ पर खड़ा कर लें, लोग गुजर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ऐसी मार्केट है कि जैसे ये बाहर भी जगह नहीं होती थी गुजरने की, ये सिर्फ टाइम की वजह से ये मसला हो रहा है। अगर टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दें। ये पीटीआई वाले, एक सेकंड जानना नहीं है, ये पीटीआई वाले झूठे हैं? पीटीआई वाले सारे ये झूठ बोलते हैं, माशाल्लाह अच्छा काम है। ये देखो मार्केट नजर आ रहे तुम्हें? ये पीटीआई का नहीं है, पूछो इससे, ये हल्फन के। आप बताएं, आप हल्फन बताएं, नून लेके पीटीआई के। ये सॉफ्टवेयर से डरता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने से डरते हैं सब। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट होने से सब लोग डरते हैं यहाँ पे, हम भी डरते हैं, सब डरते हैं। ये डर के बिजनेस है यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं आप पीटीआई के नून लेके, आप क्या जवाब नहीं दूंगा, मैं गैर सियासी बंदा हूँ भाई। इधर आप कह सकते हैं कैमरे के आगे? मैं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पीटीआई को, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो असल दिलेर तो वो, आप तो जा रहे थे। नहीं, ये वाकई इधर डर क्यों है इतना यार? भाईजान एक बात बताओ, हर बंदे को इज्जत प्यारी होती है। क्या प्यारी होती है? इज्जत प्यारी, इसीलिए लोग डरते हैं।
ये सब पीटीआई वाले हैं, कोई भी नून लीग किया नहीं है। क्या है कि हर बंदा इज्जत से डरता है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यानी अगर कोई पीटीआई को उसको इज्जत प्यारी नहीं है। भाईजान इज्जत प्यारी है, मगर आगे जो उनको रिस्पॉन्स मिलता है ना वो उनको पता है ना, वो प्यारा नहीं। मेहरबानी। 8 बजे लॉकडाउन, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? यार फैसला तो अल्लाह का होता है, इंसान का नहीं होता है। नंबर 1 बात है। दूसरा, इंसान को इसमें भी शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अगर अल्लाह ने रोज़ी देना हो तो हमें इस 8 बजे तक भी रोज़ी अल्लाह पाक दे देगा, ये तो कोई शक। ठीक है, इसमें भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बाकी मंदा 9 महीने मंदा होता है, दुकानदार इससे भी खुश होते हैं कि चलो बंदा ऐसे ही गुजर जाएगा। यार ये जो लोग हंसते हैं ना, इससे दिल मुर्दा हो जाता है, ज़्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। ठीक है, बाकी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह पाक अच्छी सोनी रोज़ी दे रहा है यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग मुझ पे हंस रहे हो कि मेरी बातों पे हंस रहे हो। नहीं। जी जी, वो देखिए वो कैसे हंस रहे हैं सारे। देखिए मेरी ये मैं तो इसको जानता भी नहीं, आपके इधर कहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो सच्ची बात करता है ना उस पे हर बंदा हंसता है। नहीं। कौन कम वक्त इस बात पे हंस सकता है कि अल्लाह का ये शुक्र। बहुत सख्त गुनाह है किसी पे हंसना सर, इसकी भी पूछ होनी क़यामत वाले दिन, ये भी ज़हन में रख मैं लेना। आपको बता देता हूँ, वो चाहे आप हंसो चाहे वो हंसे। कौन कम वक्त है जो इस बात पे हंसे कि हंसे, मुझे परवाह नहीं है। कैमरा में सब उस पर कैमरा डाल देखिए दें। मुझे किसी का परवाह नहीं है, मुझे किसी का परवाह नहीं है। मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, उसके गुनाह ज़्यादा हो रहे हैं। ये बात ऐसी है, इनको इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि हमने कारोबार करना है। 8 बजे हमने बंद करना है, उगराइयाँ देनी है, सारा सिस्टम हमारे सरों पे है। घर बैठे होते हैं, इंसान को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। मैं एक सेकंड बोल घर बैठे 1 लाख सैलरी मिलती है, इनको क्या टेंशन होनी है? बकाया अमाल कौन सा आसमान से फरिश्ता उतरा है? इंसान तो बना ही है, गुनाहों से भरा हुआ है। ऐसे फजूल बातें हैं, आपके सामने है सब कुछ, कोई भी नहीं बोल सकता, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है। भाई बात पता क्या है, तुम लोग बचोली बात करते हो। 9 बजे मार्केटें खोलो। ये है इसको अब इसका भाई जो है ना 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, और ये अभी आया है इधर खाली सलाम तो किसी दोस्त के खातिर आया था, उसको उसने बुलाया था। इसको तो मिल रहा है, इसका तो रिज़्क लगा हुआ है, किसी गरीब का नहीं। अब खुद यहाँ पे मैं खुद मुलाजम हूँ, ठीक है, किसी का नहीं सोचते। इसको तो मिल रहा है, इसका तो जेब भरा हुआ है, किसी और का भी सोचा करो खुदा के लिए। मैं शर्तिया कहूँगा आपको, शर्तिया आप 9 बजे मार्केटें खोलो, 9 बजे आपको अच्छा सोनी रोजी देगा। आप लोग जनाब आते हो 12 बजे, नमाजें पढ़ते नहीं हो, अल्लाह को याद करते नहीं हो, तो बरकत कहाँ से होनी है? आप मार्केट को जो है ना यहाँ पे जो है ना शटर 9 बजे यहाँ पे खुद आके पजाते, खुद चौकीदार के साथ ताला खोलो। अगर हम यहाँ पे ना पहुँचे, हम मुलाजम है, हमारा काम है ड्यूटी करना। हम लोग आप लोग 8 बजे यूनियन का काम आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 दुकानें इस मार्केट पे पजाते खुद जाती है तुम्हारी, ठीक है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हमसे पूछो क्या है क्या नहीं है, किराए के लिए हम परेशान हैं, समझ गए कि नहीं? मुझे ये आ गया बातें करने वाले, हंसी आ गई है। मुझे इसकी बातों में हंसी आ रही है, जज्बाती हो गया। जी व्यूअर्स, आपने एक आम ताजर की राय सुनी। वो परेशान है, खुश है, इस फैसले को, लॉकडाउन के फैसले को सपोर्ट कर रहा है, तनकीद कर रहा है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं यहाँ पर बैठकर अपनी ओपिनियन अगर दूंगा तो मुझ पे ही इल्ज़ाम लग जाएगा कि एंकर पार्टी बन चुका है। जब आम ताजर ये सोच रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम क्यों ना उनके पास जाएं कि उनकी क्या ओपिनियन है इस लॉकडाउन को लेके। क्या उनकी तो दुकानें नहीं है, ठीक है, मान लिया, उनकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, और क्या आम जो हमारा ताजर है उसकी तरह ये हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनके डॉलर्स की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान का तगड़ा होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर पाकिस्तान में डॉलर्स लाता है, ये याद रखिएगा। वो इस फैसले को किस तरह देखता है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज एक्सपोर्टर यंग, जो जिन्हें यंगेस्ट एक्सपोर्टर कहा जाए, यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, रूए रवाम भी हैं, मोहम्मद शुएब बटालवी साहब मौजूद हैं। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुएब भाई, आम ताजर तो इस फैसले से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, आपके साथ चले मैं शेयर कर देता हूँ, अवाम के साथ नहीं कर रहा,
मैं उनको परेशान देख रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी मजबूरी है। एक एक्सपोर्टर इस फैसले को कैसे देखता है 8 बजे के लॉकडाउन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक जब से जंग लगी तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिफिकेशन निकाला कि आप जो है इसको 8 बजे के बाद दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है। उसका नुकसानात इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बड़ी स्पीड से नीचे गिर गई। एक्सपोर्ट्स भी? जी, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब वो कैसे? उसमें अभी जो बड़ी एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो आबना हुर्मस बंद होने की वजह से हमारी फूड की आइटम्स थी, उसमें एग्रीकल्चर की गुड्स थी, उसमें हमारी गारमेंट्स की थी, जो बड़ी इंडस्ट्री थी, वो सारी की सारी आबना हुर्मस बंद है, क्योंकि बाय सी जाता था समुंदर के रास्ते से सामान। ठीक है। दुनिया की 90% ट्रेड समुंदर के रास्ते से होती है। अच्छा। तो वो होगी बंद आबना हुर्मस, ये जंग लगने की वजह से। उसका नुकसान ये हुआ, एक तो ये एक तरफ बंद है, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, मजदूर हमारा परेशान है, मजदूरों के पास रोटी खाने को नहीं है, जो इंडस्ट्री में दिहाड़ी पे काम करते थे वो बेचारे परेशान हैं। मिडिल क्लास जो लोग थे, जो कंपनीज में कितने लाख लोगों का एक्सपोर्ट की वजह से रोजगार चल रहा था, वो भी बंद है। उसके बाद अभी जो हमारी बाई एयर की एक्सपोर्ट चल रही थी थोड़ी थोड़ी, जिसको ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट कहा जाता है, उसकी वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाल के बंद कर दी। वो कैसे बंद की? अब सारा दिन इंडस्ट्रीज में, छोटी इंडस्ट्रीज में, छोटे एक्सपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सामान तैयार होता है, वो ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो जाता है कोरियर कंपनीज के पास। कोरियर कंपनीज के पास पहुँचता है रात के टाइम। रात के टाइम जब पहुँचता है सामान, तो कोरियर कंपनीज वाले, आपने देखा होगा इधर गार्डन टाउन में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, सारे ठीक है, अक्रॉस दी पाकिस्तान। हाँ जी, अक्रॉस दी पाकिस्तान सारे के सारे जो है शॉप्स के अंदर छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, ऑर्डर वसूली करते के हैं नाम से, ठीक है, स्काईनेट के नाम से, डिफरेंट छोटी छोटी बनी हुई है कंपनीज। वो एक्सपोर्टर ई कॉमर्स वाला 2 कार्टन 4 कार्टन वो लेकर आता है उनके पास। उन्होंने पहले से बुकिंग्स की होती हैं एयरलाइन से, एडवांस पेमेंट करके एयरलाइनों के पास स्पेस अवेलेबल बुक की होती है, जो जो फ्लाइट्स जा रही होती ठीक है, ठीक है। अब वो ई कॉमर्स की जो एक्सपोर्ट्स की गुड्स हैं वो पहुंचती है कोरियर कंपनीज के पास। कोरियर कंपनीज के पास रात के टाइम पहुंचती है, क्योंकि फ्लाइट ज़्यादा 90% फ्लाइट्स रात के टाइम होती है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने फ्लाइट से कुछ देर पहले कोरियर कंपनीज ने अपनी शॉप पे मंगवा के जितना सारे दिन का इकट्ठा हुआ वो पैक किया, और उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंच गया। एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो उसमें पुलिस, पीरा फोर्सेस ब्लैकमेल कर रहे हैं कोरियर कंपनीज को। पीरा फोर्सेस जी जी, पीरा फोर्सेस भी। ये तो खिदमत के लिए बनाई गई है पीरा खिदमत के लिए नहीं, ये इतना बेड़ा गर्क किया पीरा फोर्सेस ने। ये पहले पुलिस वाला 1000 रुपया अगर किसी रेडी वाले से या किसी कोरियर कंपनी के ऑफिस से लेता था, पीरा फोर्स वाले जगह 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं। सिर्फ रेट्स बढ़ा है। ये पीरा फोर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट इनको बनाना चाहिए था जो उनका चेक एंड बैलेंस होता। पीरा फोर्स खुल के बदमाशी कर रही है। आप लिबर्टी की साइड पे चले जाएं, आप गार्डन टाउन की साइड पे चले जाएं, आप देखें पीरा फोर्स क्या हाल कर रही है लोगों का। वीकेंड की साइड पे आप आ जाएं। शुबाना रोज खिदमत नहीं कर रही जी, शुबाना रोज खिदमत नहीं कर रही। नहीं, खिदमत बनाई उन्होंने, मरियम साहबा ने, सीएम साहबा ने बनाई खिदमत के लिए थी, लेकिन ये जो है अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं रखा इन्होंने। चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए था ना। बिल्कुल ऐसे पीरा फोर्स वाले उसके ऊपर उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट, होटल्स, शॉप्स वाले जो पैसे दे रहे हैं, वो रात 12-12 बजे तक, रात 2-2 बजे तक खुला रहता है। आप आ जाए, आज भी रात 12-2 बजे मैं आपको दिखा दूंगा जो शॉप्स खुली हुई है। तो ये फौरी तौर पे नोटिफिकेशन होना चाहिए था, अगर हुआ भी था। बड़े जो मॉल्स हैं इनके ऊपर होना चाहिए था लॉकडाउन। पिज्जा वाले जो बड़े फूड चेन्स है वगैरह। अभी मैं आपको बताऊं, उस दिन मेरा लड़का रात को, स्टाफ के जो लोग हैं एयरपोर्ट से सामान उतार के एक्सपोर्ट का वापस आए, तो उन्होंने खाना खाना था। वो बेचारे ने मेरे पास ये मैसेज है, वीडियो बना के भेजी कि सर मुझे कहीं से कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मैंने खाना नहीं खाया रात का, मैं तो सारा उधर काम करता रहा एयरपोर्ट पे, अब मैं वापस आया, मेरे पास कोई होटल नहीं खुला, क्योंकि परदेसी लोग हैं बेचारे, इधर आके मजदूरी करते हैं, ना कोई होटल खुला हुआ है, ना कोई दुकान खुली हुई है, मैं कहाँ से रोटी खाऊं, ना गैस आती है, ना बिजली आती है, वो कहाँ से बेचारा रोटी खाए। तो ये फौरी तौर पे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कोरियर कंपनीज के ऊपर ये लॉकडाउन किया हुआ है, और दूसरी अदर जो लोग हैं, छोटे बेचारे बिजनेस कम्युनिटी है, उनका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन ये खत्म होना चाहिए। इसको डी नोटिफाई करके और इसको फौरी तौर पे ओपन करना चाहिए।
क्योंकि देखें इसका कितना नुकसान हो जाएगा या कितनी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ले। एक दुकान है उसमें एक लाइट और एक पंखा चल रहा है, वो कितनी की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेगा। ठीक है, बड़े मॉल्स तो समझ आती है, मॉल हो गया या मॉल हो गया, फूड चेन हो गई, उन्होंने एसी लगाए हुए हैं ऑफिस में अपनी जहाँ पे फूड चेन में मुझे मशीनरी चल रही है उनकी। ठीक है, लेकिन इस छोटा बेचारा जो है दुकानदार है या छोटा एक्सपोर्टर है या कोई छोटा रेडी लगा के बैठा है, वो लॉकडाउन से वो क्या बेचारा अपनी 500,000 रुपए कमा लेता होगा ना, कितना को वो कर ले। अच्छा, मुझे आपकी बात से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट स्पीड से नीचे गिरी है। जो बेचारों की अमेजोन पे देखें, जो अमेजोन यूएस में या यूके में यूरोप में अमेजोन पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ी एक्सपोर्ट, कोई डिफरेंट आइटम्स लोग कर रहे हैं, कोई सर्जिकल कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स गुड्स कर रहा है, कोई लेदर आइटम्स कर रहा है, कोई जो है फुटबॉल की एक्सपोर्ट कर रहा है, ये छोटी आइटम्स, कोई लॉन्ड्री बैग्स कर रहा है। तो वो बेचारा यहाँ से एक्सपोर्ट करता था। अब ई कॉमर्स का अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट लेवल पे जो ऊपर लोग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, या जो कॉमर्स इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट होती कैसे है। कितनी मुश्किल से बेचारा जो है वो अपने अमेजोन अकाउंट पे या ईबे पे अपना अकाउंट बनाता है, उसको डेवलप करता है, उसके ऊपर पूरा साल मेहनत करता है, उसकी मार्केट में दुनिया भर के ई कॉमर्स के एक्सपोर्टर्स जो है, चाइना जैसे एक्सपोर्टर्स उस पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसमें अब स्टेप बाय स्टेप वो मार्केटिंग करके उसको अपने ऊपर नाम लेकर आता है। वो बेचारा अपनी जो 2-3 हज़ार, अगर मैं गारमेंट्स की बात करूँ या फुटबॉल की बात करूँ या लॉन्ड्री बैग्स की, तो वो जब उधर अमेजोन के हेडक्वार्टर भेजता है तो उसका टाइम पीरियड होता है कि 6 मंथ के अंदर आज इसकी 10 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, कल 20 हो रही हैं, परसों 50 हो रही हैं, उसके बाद इस तरह रेगुलर। जब उसकी 1000 पीस गया तो 1000 पीस के बाद उसने 500 अगर सेल हो गया तो अमेजोन ने उसको अलर्ट देना है कि आप फौरी तौर पे अपना और माल भेजें, एक्सपोर्ट करें। तो वो जब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, कोरियर कंपनीज इन्होंने बंद करवा दी लॉकडाउन की वजह से, वो एयरलाइंस की स्पेस जाया होगी, कंट्री की जो है वो इकोनॉमी को फर्क पड़ गया, ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट बड़ी स्पीड से गिर गई, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन पीरा फोर्स को, पुलिस वालों को इन्होंने जो है उनकी दिहाड़ियाँ, उनके रूटीन के पैसे जो लगा दिए, तो ये फौरी तौर पर डी नोटिफाई होना चाहिए और लॉकडाउन को फौरन जो है ना छोटे कम अज कम बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तरस खाना चाहिए। अभी देखें दिन के टाइम पे गर्मी इतनी है, अभी आप बाहर से आए हैं, टेम्परेचर 40 प्रोड्यूसर साहब ने कहा लगता है आपने गाड़ी में एसी नहीं लगा, अब तक मैं एसी था मेरी गाड़ी 40+ इसका टेम्परेचर है, ऐसे ही है। ठीक है, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गर्मी में कोई बाहर नहीं निकलता। लोग शाम के टाइम निकलते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, ईद आगे आ रही है, बड़ी ईद, लोगों ने शॉपिंग के लिए निकलना है, दुकानदारों को थोड़ा बिजनेस चल रहा है, तो एक दुकानदार जो छोटे दुकानदार है बेचारे कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर लेते होंगे, कितना पेट्रोल यूज कर लेते हैं। एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन्होंने लॉकडाउन लगाया ना, तो वो छोटे जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर दोबारा कि आप जो फौरी तौर पे इसको डी नोटिफाई करके इसको लॉकडाउन को ओपन किया जाए, छोटी बिजनेस कम्युनिटी छोटी। अच्छा, आपकी बात से लास्ट क्वेश्चन मुझे ये समझ आई है, आप कहना चाह रहे हैं जो लग्जूरियस आइटम्स हैं, जैसे जहाँ महंगे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े मार्ट हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी नहीं है, उसे हम 2 दिन डिले भी कर सकते हैं, वो 8 बजे बंद कर दी जाए। लेकिन जो एक आम रेहड़ी बांध से एक छोटा दुकानदार है और जो हमारी ई कॉमर्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, कोरियर कंपनीज है, जो भी जगह हैं, उनको इस वक्त फैसिलिटेट किया जाए, यानी इसमें गवर्नमेंट को डिस्टिंक्शन पैदा करने की जरूरत है। आप ये चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग ये चाह रहे हैं। व्यूअर्स, ये आपने मोहम्मद शुएब बटालवी साहब का जो एक मैसेज है सुन लिया। देखें, ये इनकी फील्ड है। तो प्लेटो ने तकरीबन आज से 2500 साल कबल, 2400 साल या 2300 साल तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत हूँ तो इसके लिए माजरत चाहूँगा, कहा था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। जिनकी जो फील्ड हो, उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, उसको सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है। वहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस का असूल इसलिए होता है कि इनकी एक फील्ड है, इनको पता है इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं अगर 4 जमातें पढ़ के या BA के बाद रट्टा लगाकर CSS कर जाता हूँ और मैं ब्यूरोक्रेट लग जाता हूँ, 17वें स्केल का ऑफिसर लग जाता हूँ, 17th स्केल का, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास इनसे ज़्यादा तजुर्बा हो और मेरी ही बात मानी जाए। मैं पेंट कोट पहन के, टाई लगाकर, सूटेड बूटेड होकर अपनी CM को, अपने मिनिस्टर्स को कहूँ वी आर सपोज टू डू इट, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट मैटर, इस तरह के अंग्रेजी के लफ्ज़ बोलकर
यकीन करें बाज़ औक़ात हम अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करते हैं और जो मुल्की मईशत का पहिया जो लोग चला रहे हैं हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखें नेपरा से कल से अभी तक कन्फ्यूजन है, बल्कि आधी दुनिया परेशान है कि भाई अब हमें नेपरा से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। कल बिजली के नरखों में भी 1 रुपये 42 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। पेट्रोल किधर है, गैस की कीमतें किधर हैं, गैस अव्वल तो आती नहीं है, डीजल की कीमतें किधर हैं। इन हालात में अगर मुल्क की मईशत चल रही है तो उस पर सोचा जाए कि कौन सी गैर ज़रूरी जगह हैं, पॉइंट्स हैं जिन्हें 8 बजे बंद हो जाना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें 8 बजे के बाद भी काम करने का मौका देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।